you, sir. Thank you. So, a very good evening to all the respected participants present here. I, Dr. Priyanka Vashne, on behalf of Global Learners Meet, an initiative of the Vashne Teachers Group, greet and welcome you in today's interactive webinar on the topic Wind Tunnel Testing. Just to share, we are a group of learners who are always eager to learn about various themes and phenomena of the world. And today's webinar is the 22nd session in this continuous chain of enriching webinars since August 2020. That is almost last 1 year we've been doing it. Today, we have a very eminent personality with us as speaker, Dr. Priyank Kumar from Birla Institute of Technology, Mezara, Ranchi. Respected Dr. Kumar, we welcome you once again on this forum. Now, I would like to invite Dr. Gagan Gupta sir to please introduce our speaker of the day, that is Dr. Priyank Kumar sir. Gagan sir, over to you. Thank you. Thank you, Priyanka ji. Today we are welcoming Dr. Priyank Kumar, and Priyank is my close friend at Ranchi, where I have worked for more than around 3 years. So Priyank is basically a native of Begusarai, Bihar, and presently with the Department of Aerospace Engineering and Rocketry, Birla Institute of Technology, Mesra. Priyank completed his bachelor's in mechanical engineering from Malan College of Engineering, Hassan, which is affiliated to Vishwasaraya Technology University, Karnataka. Priyank completed his master's and doctoral programs in experimental aerodynamics and aerospace from Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi. This department of Birla Institute of Technology is very important because it pursued a good amount of rocketry research during 1960s, and I was told by my seniors there that some of the rocket launchers were directly used in the battlefield in 1962 war. So that department is of great importance, great historical importance. Yes, Priyank has experience of 13 years, more than 13 years of teaching and research at Birla Institute. He has published more than 18 articles in journals and more than 50 deliberations and participations in national and international conferences. He has handled 10 research projects sponsored by different agencies, out of which 5 are ongoing, including the one by AICTE under its Idea Lab project, Ranchi, which is being a capital city of Jharkhand, is an industrial and educational city as well. Priyank is a core member of Jharkhand Education Grid, which is a government of Jharkhand's initiative for improvement of education quality. And Priyank ji is also handling an industrial consultancy project at Birla Institute. Dr. Priyank has guided 27 master's theses in engineering and also supervising 3 doctoral programs at Birla Institute today. So today Priyank will be with us to let us understand that how these wind tunnels work. We are very eagerly looking for your deliberations, Priyank ji. I am sure that you will make our understanding very simple, very easy. It is all yours, Priyank ji. Thank you so much, sir, for such a nice introduction. I hope I am audible to everybody. Yes, you are to me. Yeah, thank you so much, sir. जैसा आपने बताया बिल्कुल सही सर, जो हमारे डिपार्टमेंट है, इट वाज जस्ट टू करेक्ट यू, इट वाज नॉट इन 62, इट वाज यूज्ड इन 1971 वॉर, जो बांग्लादेश वाली वॉर हुई थी। तो उसमें हमारे यहाँ पे रॉकेट्स वगैरह बन के और बॉर्डर्स पे गए थे। तो वी हैव अ कंप्लीट सेटअप। तो अब तो उस चीज़ को थोड़ा छोटे स्केल पे कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे हैं हमारे, तो बच्चों को हम लोग कैसे प्रोपेलेंट बनाना है, कैसे वो रॉकेट के मोटर्स बनाने हैं, उस चीज़ की जानकारी देते हैं। इनफैक्ट आई एम नॉट फ्रॉम अ प्रोपल्शन बैकग्राउंड, तो बहुत ज़्यादा आइडिया उस चीज़ का नहीं है, बट येस आई एम इनटू एरोडायनामिक्स। तो आई मेनली टेक केयर ऑफ, क्योंकि उसमें सर आग वाग लगती है तो थोड़ा डर भी लगता है, तो इसलिए आई स्टिक टू एरोडायनामिक्स। Yes, you are right. Is my screen visible now? Sir, your screen is not visible as yet. Okay, just a minute. Yes, sir. Now it is. Now it is coming. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it okay?
Yeah, but you can make it full screen, Full sir. screen. Let me make it full screen. Yes. My laptop is. Yes, now it is. ये प्रियांक जी, मेरा लैपटॉप भी मेरी तरह से थोड़ा धीरे धीरे स्लो हो गया है. नहीं सर, मेरा तो ज्यादा स्लो है सर, तभी हमने आपको कहा. But once it is loaded, then it will become all right. Yes. Now you can start. Yeah, thank you sir, thank you so much. Please, please. So I thought that since the audience was, I came to know that we are a group of teachers. So I thought from different background. So I thought, okay, let it be wind tunnels, and we'll have an overview of that. So as sir has already told, I have been working for 13 years over there, and yes, I have more into aerodynamics and more towards low speed aerodynamics, क्योंकि वो थोड़ा मेरा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है. तो एक तो ऐसे ही एरोडायनेमिक्स स्पेशलाइजेशन है, प्लस उसमें लो स्पीड पे काम करना ज़्यादा पसंद है, और काम करते आए हैं काफ़ी दिनों से हम लोग. तो अभी सर जो सिचुएशन है, वी आर मोस्टली कनेक्टेड थ्रू दिस मीडियम, एंड you know, this is mostly because of a very tiny microorganism which is almost of the size of a micrometer or even lesser, possibly of the order of a nanometer. So we have a lot of adverse effects because of that particular microorganism, but yes, there are some positive effects as well. That's how we are meeting right over here. So once again, I'd like to thank Gupta sir, who is, we are very close. And so we can move on to the next slide. Yes, please. So this is basically when, before I get into this problem of wind tunnels, or in fact talking about wind tunnels, let me tell you that when we talk about our Earth, our Mother Nature, so most of the dominance is there by some of the fluids, right? So if you look into our Earth's surface, most of the surface is covered by water. So almost 72%, that is the order. I'm not very sure about that. So possibly it's roughly around 70%. 70%. And we have air all around. I hope I'm audible. Yes. So we have air all around. So that is probably up to an altitude of roughly around 70 to 80 kilometers. We have air, right? And beyond that also we have air, but we call this in two different जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसमें हम एक कहते हैं कंटिन्यूम, जिसमें पार्टिकल्स हमारे बड़े क्लोजर हैं, एक दूसरे के बड़े क्लोज रहते हैं, और एक रेरिफाइड हो गया जो कि जिसमें पार्टिकल्स काफी डिस्टेंस पे रहते हैं. तो दैट इज इन आउटर स्पेस. तो मोस्टली जो बात हमारी होती है वो एयर और वाटर को लेके होती है, विच वी कॉल इट एज अ कंटिन्यूम फ्लूइड. सो मोस्ट ऑफ अस डील विद दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूम फ्लूइड्स ओनली. सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो these are some of the basic example. I mean just हम ये आपको दिखाने के लिए बताएं कि हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं. The reason being कि आज से करीबन 1000-1500 साल पहले इस तरह के बोट्स हुआ करते थे, और जो भी बोट्स हैं उनका एक अपना शेप है, बोट्स का एक शेप है जो कि वो वाटर में चल रहा है, और उसका जो प्रपल्सिव फोर्स है जो उसको आगे की तरफ मूव करने के लिए ये कर रहा है, जो थ्रस्ट दे रहा है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेल, जो उनके सेल हैं. तो जो पहला फिगर आप देख रहे हैं ये शायद 500-600 साल पहले का ये फिगर होगा, और जो दूसरा आप बोट देख रहे हैं, तो दिस हैज सम चेंजेस. सो इफ यू लुक ओवर देयर इज सम चेंज ऑन द बोट, शेप ऑफ द बोट, एंड प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इनटू द सेल एज वेल. तो अगर आप पहले फोटो पे देखें तो सिर्फ एक कपड़े का वो शायद वो बनाते थे उस वक्त, और अभी देखिए तो डिफरेंस, देयर आर डिफरेंट सेल्स एंड दे हैव अ डिफरेंट कैपेबिलिटीज. तो क्वेश्चन इज why this came up and how this came up. So that is one of the questions related to your sailboats. Next. This is a very interesting figure. I always love to talk about this because जो पहले विंटेज कार आप देख रहे हैं, it was maybe somewhere in 1850s और 1900 के आसपास का ये कार होगा. तो उस वक्त हमारा जो मेन एम था, that was basically to drive a car for transportation. Right, we are not at all bothered about कि हमें डीजल बचाना है या पेट्रोल बचाना है. फ्यूल was not an issue, और उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा मेजर, the idea was just to have the transportation. And then later on, maybe in 1950s or 1960s, this another car came up, which is probably, if you recall, अगर सब लोग देखे होंगे Contessa या Impala, this was something like this.
तो उनका शेप कुछ और था, राइट. एंड नाउ वी हैव रीसेंट एडवांसमेंट इन आवर कार, जो कि आज के डेट में फरारी और लैम्बोर्गिनी तरह तरह के कार्स आ रहे हैं, राइट. बिकॉज आवर आइडिया इज टू मेक देम फ्यूल एफिशिएंट. वो एक पहला चीज़ है, क्योंकि फ्यूल आज के डेट में काफ़ी कॉस्टली आता जा रहा है, होता जा रहा है. एंड देन वी हैव टू हैव मोर एंड मोर स्पीड. द कार्स आर सपोज टू बी क्वाइट फास्टर, राइट. नाउ अगर एक बार हमारा कार फास्ट जाना शुरू होता है, तो देर आर डिफरेंट फोर्सेस मूवमेंट्स विच आर गोइंग टू एक्ट ऑन दिस कार, which can be very detrimental for the human being who is sitting over there, driver or जो भी लोग बैठे हुए हैं, right. So this is how the differences are coming. Next slide. Now this is the first figure is of Wright brothers, जिन्होंने जो पहला एयरक्राफ्ट बनाया था. You can see there is a typical thin aerofoil का प्लेन था, बाई-विंग प्लेन इसको बोलते थे, है ना. एंड देन वो उस वक्त उसका एक शेप था जिसमें कि सिर्फ एक व्यक्ति बैठा करते थे. Then it came the era of Boeing and Airbus. जो सेकंड फिगर है उसमें करीबन हमारे 150 से 160 लोग बैठते हैं आज के डेट में, कमर्शियल एयरक्राफ्ट हमारे हैं. एंड देन द फ्यूचर एयरक्राफ्ट जो आप देख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी ब्लेंडेड विंग बॉडी, जिस पे अभी रिसर्च चल रहा है. एयरबस उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा है. एंड द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी इज गोइंग टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑलमोस्ट 700 to 800 पैसेंजर्स. दैट्स व्हाट दे आर एमिंग टूवर्ड्स. तो ब्लेंडेड विंग बॉडी जो है इस तरह के, वो हम लोग कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ करने की कोशिश कर रही है, और प्लस हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम डिफेंस पर्पस के लिए भी अनमैन्ड एयर व्हीकल के लिए यूज़ कर सकें. तो इस तरह जैसे कुछ देर पहले सर वो सारस की बात कर रहे थे, तो अनमैन्ड एयर व्हीकल में इट्स एम इज टू फ्लाई एट अ लोअर स्पीड, बट इट्स गोइंग टू बी फॉर क्वाइट अ लॉन्गर टाइम एंड फॉर क्वाइट अ लॉन्गर रेंज. नेक्स्ट स्लाइड सर. Now this is a typical general photograph which I have taken. I love this example because if you look into all the buildings nowadays, it's an era of high-rise buildings. So these high-rise building, many a times you have pillars, you have chimneys. If you go to some very highly populated areas, you'll see there are industries और साइड में बिल्डिंग्स है. और अगर वो सी शोर के किनारे है तो काफ़ी वहाँ पे हवाएं चलती है, काफ़ी तेज हवाएं भी चलती हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है सर कि इनके साथ प्रॉब्लम्स आते हैं. प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि इनमें वाइब्रेशंस होते हैं. हमारे टर्म्स में अगर आप देखेंगे या किसी भी फिजिसिस्ट के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे, तो कुछ वोर्टेक्स बनते हैं जिसके चलते इसको हम कहते हैं वोर्टेक्स इंड्यूस्ड वाइब्रेशन. तो वोर्टेक्स क्या करते हैं कि इस बॉडी, जो भी ब्लफ बॉडी होगा, उसके पीछे के साइड से फॉर्म होते हैं. अगर सामने से हवा आ रही है तो पीछे के साइड से फॉर्म होंगे, और उसके ऊपर प्रेशर का डिफरेंसेस आता है, तो जिसके चलते वो उस बॉडी को थोड़ा सा हिलाते हैं, स्वे करते हैं. अगर वो चीज़ हिल रहा है, देन इट मे हैव अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. तो उसमें कभी ना कभी आपके स्ट्रक्चर्स में कुछ ना कुछ फटीग फेलियर हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें. आपके चिमनीज हैं, अगर चिमनीज इफ दे आर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ एयर ब्रीज या कुछ ऐसा अगर होगा, तो इट मे हैव सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल इश्यूज. अगर जब भी मौका मिलेगा तो आप काइंडली, हम तो इस पर दिखा नहीं पा रहे हैं, पर अगर मौका लगे तो टैकोमा ब्रिज फेलियर अगर आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंजीनियरिंग फेलियर्स है. एंड हु वाज द कल्प्रिट? द कल्प्रिट वाज अ वेरी स्मॉल ब्रीज, ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मे बी अराउंड 0.1 मीटर पर सेकंड और 0.2 मीटर पर सेकंड. बहुत छोटा सा हवा का वो था, और उसके चलते उसका फेलियर हो गया. तो दैट वाज द स्ट्रक्चर फेलियर, एंड दैट वाज, बाद में जब सारे रिसर्च हुए इसके ऊपर, तो दे केम टू नो दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द वोर्टेक्स इंड्यूस्ड वाइब्रेशन, राइट. तो उसके ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा हमारा विंड टनल टेस्टिंग्स वगैरह किया गया था. देन दैट्स हाउ वी केम टू नो. तो इस सारे बिल्डिंग्स पे सर अगर आप देखेंगे, सबके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं. तो अगर हवा चलेगी तो सबके ऊपर अलग अलग तरह का फ्लो पैटर्न होगा, और एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट वी हैव टू असर्टेन. सो दैट इज हाउ दीज डेज बिल्डिंग एरोडायनेमिक्स का बहुत ज़्यादा डिमांड आते जा रहा है. आजकल आप देखेंगे जब भी हाई राइज बिल्डिंग आएगी, तो जो बिल्डर्स होते हैं वो भी विंड टनल टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन चाहते हैं कि ओके, अगर हमें ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन मिल जाए तो विल बी ऑन अ सेफर साइड दैट ओके, विद दिस काइंड ऑफ स्पीड ऑफ एयर माय बिल्डिंग इज नॉट गोइंग टू स्वे, राइट. और उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं आ सकता है. तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण एरिया हो गया है आजकल स्टडी का. नेक्स्ट स्लाइड सर. Now this is some typical examples. Yes, that is how we started. एक bird को आप देख लीजिए, जितने भी birds हैं, they have their own aerodynamics and they are pretty, I mean, very good in aerodynamics. They know how to come down, how to go up. So they have a fantastic sense of aerodynamics. And the same thing is applicable for the fishes or the water animals who actually know that how to
go inside that particular fluid, क्योंकि एक पक्षी को हवा में चलना है और मछलियों को पानी में तैरना है, राइट? और ये जितना जानते हैं ये हम लोगों से बेहतर जानते हैं कि किस तरह से एरोडायनेमिक्स का उपयोग करना है. So they are quite intelligent than us. So we can move ahead. Next slide. Now this is something very typical. I've shown you a picture of bullet. The first one is of a bullet which is flying at a very high speed, almost of the order of Mach 2 or so. And in case of this thing, you get a shock wave, right? I hope you are aware of a shock wave, what it is. आप अगर कोई भी दिवाली में अगर पटाखे को छोड़ते हैं तो उस पटाखे से कभी ना कभी आप देखे होंगे वो बच्चे ये करते हैं ना, हाइड्रो बॉम्ब और एटम बॉम्ब, वो सब अगर करते हैं तो अगर पास में रहे तो एक झटका लगता है अचानक से. So that is a sudden change in the flow properties that actually creates that kind of झटका जो हमने उसको जो हम कह रहे हैं. So that is what is a kind of a shock wave. तो अगर आप टेक्निकल टर्म में उसको देखिएगा तो shock wave is a, I can call it as a very thin layer across there is a drastic variation in the flow properties. So we have aim to even go beyond that particular shock wave. We have to get into that shock wave. The next is of a typical missile. अग्नि या पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो ये अग्नि पृथ्वी मिसाइल है जो कि even it has to go at a very high speed. So that is also, again, it is also going through a supersonic speed. So that is a different area of research, right? And we are actually mostly into these things these days because of the defense. Apart from that, अगर हम सुपरसोनिक फ्लो की बात करेंगे तो जो भी स्टील इंडस्ट्री के लोग अगर यहाँ पे होंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेटलर्जी प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो मोल्टन मेटल होता है उसके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए हम कुछ जेट्स का इम्पिंचमेंट करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ सुपरसोनिक स्पीड जेट, राइट? तो उसका भी हम लोग उपयोग वहाँ पे करते हैं. तो आप मतलब इन सारे एग्जाम्पल से यू विल कम टू नो कि ये काफ़ी वाइडली स्प्रेड है. एरोडायनेमिक्स का यूज़ बहुत जगह है, चाहे आप छोटे से ऑर्गेनिज्म. इनफैक्ट अभी हम लोग रिसेंट में कोशिश कर रहे थे, वो संभव वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग ज़रूर ये कोशिश कर रहे थे कि जो कोरोना वायरस है उसका एयर में किस तरह से प्रोपगेशन हो रहा है, हम लोग उसका कंप्यूटेशनल मॉडल एक बनाने की कोशिश कर रहे थे. दैट वाज प्योरली बेस्ड अपॉन आवर CFD एनालिसिस, जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स की एनालिसिस है, हम लोग उससे करने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ दैट टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म is going to go around with us. Say for example, if I am moving and I'm actually infected with that kind of viruses or bacteria. So if I'm moving, I mean those virus may get spread because of my movement, because of my wake region, the way I'm moving, right? And how it can infect to other people, that also is a very big question mark. So आप देखिएगा कि ये सारा जो हमारा एरोडायनेमिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स का जो भी डिस्कशन है, that ranges from a microorganism to a mega structures, right? So these are a very wide range applications. बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है. We'll go to the next slide. So the thing is, with all this, the question is why we need a wind tunnel. Now the thing is, अगर मान लीजिए हमें say for example हमें हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, उस पूरे एयरक्राफ्ट की हमें टेस्टिंग करना है कि वो फ्लाई करेगा या नहीं करेगा. So I cannot have such a big aircraft and put it inside a wind tunnel, because having a wind tunnel itself will require a very huge area, which is not possible, क्योंकि financially भी उस चीज को देखना पड़ता है. So what we do is we basically do two things. One is to come up with a geometric similarity when we scale down the model. तो जो भी हमारे मॉडल होंगे उसको हम एक particular factor से scale down करते हैं. And the other one what we go is for a dynamic similarity, what we mainly call it as a flow similarities. जहाँ पे हम बात करते हैं जो नॉन डायमेंशनल नंबर है, हम सारे एरोडायनेमिक्स के लोग नॉन डायमेंशनल नंबर को बड़ा पसंद करते हैं. तो हमारी बात भी होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा फोर्सेस इतना पड़ रहा है, इतने न्यूटन्स है, हम कहते हैं हमारा CL इतना है, CD इतना है. कोफिशिएंट्स की बात हम लोग ज़्यादा करते हैं. तो इस तरह के डायनेमिक सिमिलैरिटी में जो हम लोग बात करते हैं, दैट इज मोस्टली रेनॉल्ड्स नंबर, मैक नंबर, ऑल दोज थिंग्स, दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, तो I mean, most of the people might be aware of this number, but still those who are not aware, I can tell you that it's a ratio of inertia force to viscous force. यानी कोई जा रहा है और एक दूसरा आदमी उसको खींच रहा है. So numerator is all about going and the denominator is all about pulling, right? So there is a ratio over there जो Reynolds number की हम बात करते हैं. And then there is something what we call as Mach number. When we say that, it's the flow speed of a body divided by the speed of the sound. In fact, the local speed of the sound. So I always stress on this local speed of sound. The reason being is, अगर हम Mach number की बात करेंगे
तो जो डिनोमिनेटर आपका स्पीड कुछ भी हो, लेट इट बी अराउंड 15 मीटर पर सेकेंड, but that has to be divided by your local speed of sound, which we call it as at around 332 meter per second or 333 meter per second, जो speed of sound होता है. So that is evaluated as root over gamma RT. तो उसका मेजर जो फैक्टर है that is temperature. तो सी लेवल पे टेम्परेचर कुछ और होगा और बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेचर कुछ और होगा, तो उस पर हमारा लोकल स्पीड वेरी करता है. तो दैट्स हाउ वी एक्चुअली ट्राई टू मेंटेन दिस थिंग कि हमारा मैक नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर हमारे विंड टनल के लिए सेम रहे. तो फ्लो सिमिलैरिटी प्लस ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी ये हमें बताता है कि ठीक है, हम विंड टनल का टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं. तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. और ये जो फोटो आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा एक रेसिंग कार है, छोटे स्केल का मॉडल है, बट अगेन वी हैव टू मैच द रेनॉल्ड्स नंबर ओवर देयर. आई कैन नॉट से कि अगर हम उसी स्पीड में इस कार को उस पर विंड का फ्लो करेंगे तो इट मे नॉट गिव द सेम इफेक्ट. इसीलिए हम लोग को वो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ा के इसमें रखना पड़ेगा, सो दैट आई मीन रेनॉल्ड्स नंबर मैच करना पड़ेगा, सो दैट आई गेट द सेम इफेक्ट. तो फ्लो की वेलोसिटी हम यहाँ पे बढ़ा देंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं, बट यस दैट्स व्हाट वी डू, दैट वी ट्राई टू मैच द रेनॉल्ड्स नंबर, मैक नंबर, एंड देन वी ट्राई टू स्केल डाउन द मॉडल. नेक्स्ट स्लाइड सर. तो अगर प्रियांक थोड़ा सा विंड टनल इसलिए है और विंड टनल क्या है, थोड़ा 3-4 लाइन में थोड़ा सा ये बता दीजिए. बिल्कुल सर, उसी चीज को हम बता रहे हैं अभी. जो विंड टनल होता है ये एक तरह का डक्ट है, आप समझ लीजिए बिल्कुल एक सीधा साधा डक्ट है, और इसके एक तरफ जहाँ पे फैन लिखा हुआ है तो उस फैन को हम रोटेट करते हैं, एंड दैट इज अ सक्शन फैन. तो वो फैन जब वो फैन चलता है, सक्शन फैन जब चलता है तो जो आउटर एटमॉस्फेयर है उधर से ये हवा को सक करता है. तो अभी आप देखेंगे कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हमारा प्रेशर क्या है, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. बाहर की तरफ बिल्कुल बाहर चले जाए तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. जब उसको सक करके हम अंदर लाते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक कन्वर्जिंग चैनल बन रहा है. तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, हम लोग अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़े हैं कि जैसे कोई कन्वर्जिंग चैनल आएगा तो वहाँ पे हमारी फ्लो वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो जो कन्वर्जिंग सेक्शन है बाएं की तरफ से आप देख रहे होंगे, कन्वर्जिंग सेक्शन जो कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ से हमारी स्पीड बढ़ती है. और एक टेस्ट सेक्शन हमारा है जहाँ पे यूनिफॉर्म एरिया है, जो वहाँ पे एरिया है वो कन्वर्जेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म है. तो उसमें क्या होता है कि हमारी फ्लो वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है. और उसके बाद फिर हमें उस चीज़ को प्रेशर रिकवरी करना होता है, जिसके चलते हम एक लंबा सा वहाँ पे डिफ्यूज़र डालते हैं. उसका ऑलमोस्ट एंगल रफली अराउंड 4 to 7 डिग्रीज होता है विद हॉरिजॉन्टल. तो इस तरह से हम अपने विंड टनल से उधर से हवा डालते हैं और इधर से निकालते हैं. और बीच का जो एरिया है जिसको हम टेस्ट सेक्शन कहते हैं, कोई भी टेस्ट मॉडल होगा तो हम उसको बीच वाली एरिया में ही रखते हैं. सिंपल बर्नौली इक्वेशन का यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट दैट हाउ वी कैन गेट द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इनसाइड द विंड टनल. वेरी सिंपल, वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द डिटेल्स. जो assumptions है हम उस assumptions को भी एज इट इज मानते हैं कि फ्लो इनविसिड है, इनकॉम्प्रेसिबल है, वो सारे चीज़ को मान के वी एज्यूम दैट कि हमारा बर्नौली इक्वेशन बिल्कुल सटीक बैठता है इसके ऊपर इन लो स्पीड एरोडायनेमिक्स. So that is about the wind tunnel structures. Mostly, first section is the contraction section, next is the uniform test section, and then it is the diffuser. Main यही हमारा 3 चीज होता है, और बाकी सारे डिटेल्स अंदर में आते हैं जो कि हम सब्सिक्वेंट आगे आपको दिखा सकते हैं इसमें कि हमारी ज़रूरत क्या है. क्योंकि सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि इस पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो आइडियली किसी भी बॉडी, जो भी बॉडी हमारा फ्लाई कर रहा है वो एक स्टैग्नेंट फ्लूइड में फ्लाई कर रहा है. इस चीज़ पर सर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो बॉडी हमारा फ्लो कर रहा है वो एक स्टैग्नेंट फ्लूइड में मूव कर रहा है. लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी हमारा स्टैग्नेंट है और फ्लूइड को उसके ऊपर मूव करा रहे हैं, एज्यूमिंग कि वी आर गोइंग टू गेट द सेम इफेक्ट. लेकिन मेनी अ टाइम सर होता क्या है कि अगर हम इस विंड टनल को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो हमारे जो इनपुट होगा, जहाँ से एयर का इनपुट होगा, वहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ टर्बुलेंस हो सकता है. तो अगर उस तरह का टर्बुलेंस आएगा तो वी मे नॉट बी एबल टू सिमुलेट द सेम थिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन रियल केस. जैसा कि हम बता रहे थे, रियल केस में तो हम बिल्कुल स्टैग्नेंट फ्लूइड में मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो एब्सोल्युटली वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है. लेकिन इसमें हमारे डिस्टर्बेंस आ सकते हैं जिसको हम टर्बुलेंट इंटेंसिटी कहते हैं. तो हमें देखना पड़ता है कि टर्बुलेंट इंटेंसिटी भी काफ़ी कम रहे यहाँ पे. तो दैट्स हाउ वी मेक श्योर. और फिर इसके लिए जितने इंस्ट्रूमेंटेशंस लगते हैं और इसका फिल्टरिंग करना पड़ता है, दैट आई कैन शो एट अ लेटर स्टेज. आई कैन टॉक अबाउट दैट. सो मोस्टली वी कैन से दैट इट्स अ टिपिकल डक्ट of a given shape and size so that we get a uniform flow established over there.
राइट, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा किस तरह का कन्वर्जन सेक्शन आ रहा है, किस तरह का एरिया है, वहाँ पे हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी उससे डिसाइड होता है। अगर हमारा आरपीएम ऑफ मोटर इज कांस्टेंट, हम उस आरपीएम ऑफ मोटर को चेंज कर सकते हैं टू गेट डिफरेंट विंड स्पीड्स। तो हमारे पास टनल है यहाँ पे बीआईटी मेस्ट्रा में, वी कैन गो फ्रॉम जीरो, आई मीन नॉट जीरो एग्जैक्टली, बट यस फ्रॉम 1 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड वी कैन गेट दैट स्पीड एट बीआईटी मेस्ट्रा, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड सर। So this is, there is one typical photograph which shows open circuit, जो open circuit wind tunnel आपको दिखा रहे थे। तो ये इस तरह का है, जो पीछे साइड में जहाँ से होल आपको दिख रहा है वहाँ पे फैन लगा हुआ रहता है, एंड फ्रॉम देयर वी सक इन द एयर, एंड दिस इज व्हाट यू सी इन द नेक्स्ट फिगर। ये हमारे बीआईटी मेस्ट्रा में जो विंड टनल है, सबसोनिक विंड टनल, वो है। तो बाएं तरफ आपको दिख रहा होगा कि यू हैव 15 HP मोटर यहाँ पे लगा हुआ है जिससे हमारा फैन कनेक्टेड है, और जब वो चलता है तो हम बाहर की तरफ से हवा सक करते हैं उधर से। उधर हमारा शटर है राइट साइड में जिसको हम ओपन कर देते हैं, तो बाहर की तरफ से हवा सक करते हैं, और आप देख सकते हैं कि कंट्रैक्शन रेशियो है, कंट्रैक्शन सेक्शन है उधर, एंड देन बीच में जहाँ पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है दैट इज अ यूनिफॉर्म टेस्ट सेक्शन, जहाँ से वो उसका जो भी टेस्टिंग वगैरह करना है उस चीज़ को कर रहा है, एंड देन यू हैव अ लॉन्ग डिफ्यूजर ओवर देयर जस्ट टू हैव अ बेटर प्रेशर रिकवरी। और इस आरपीएम का, मोटर का आरपीएम वेरी करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है जिससे हम उस चीज़ को उसका स्पीड वेरी करते हैं। तो दैट्स हाउ वी गो फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड टू वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ अराउंड 30 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी दिन पहले सर हमारे पास जो मोटर का वो जो मैनुअल वेरिएक हुआ करता था उससे हम लोग स्पीड वेरी करते थे, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर हमारा कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया या कुछ हो गया तो हमारा आरपीएम डिफरेंस आता था, तो हमारा फिर वहाँ पर स्टेबल नहीं रहता। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का ये किए थे। तो दिस इज अ टिपिकल विंड टनल एट बीआईटी मेस्ट्रा। नेक्स्ट स्लाइड सर। Now these are the supersonic open circuit wind tunnel which is available at BIT Mestra. So the first one has a very small test section. तो इसका सर जो स्ट्रक्चर है that is different, क्योंकि इसके लिए आप बाएं साइड में देख रहे होंगे, somehow हम कर्सर उसको नहीं ले जा सकते, लेकिन एक्सट्रीम बाएं साइड पे एक वाल्व वहाँ पे दिख रहा है that is येलो कलर, या that is ऑटोमेटेड वाल्व, और उसके बाहर की तरफ एक हमारा बड़ा सा रिजर्वायर रहता है। उस रिजर्वायर में हम लोग ऑलमोस्ट 300 PSI तक एयर स्टोर कर सकते हैं, और जो येलो कलर वाल्व था वो हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटेड रखते हैं, उसको हम लोग ओपन करते हैं तो जो ग्रीन कलर्ड रीजन है वो हमारा स्टैग्नेशन चेम्बर है, वहाँ पे हवा के स्टैग्नेट होता है, एंड देन ऑनवर्ड्स जो आगे वो कंटिन्यू हो रहा है वहाँ पे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है। तो बेस्ड ऑन द एरिया मैक नंबर रिलेशनशिप, जो हमारा प्रेशर अगर उधर बहुत हाई है तो वी गेट ऑलमोस्ट अ सुपरसोनिक मैक नंबर ओवर देयर, राइट, जो हमारा प्रेशर उस साइड से है। और फिर इसकी जो ये टनल आप देख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट वी कैन गो अप टू मैक 2.5, तो करीबन साउंड वेलोसिटी से 2.5 टाइम्स ज़्यादा हमारी स्पीड इसके अंदर आती है, और हम कोई भी बॉडी को छोटे साइज के बॉडी को टेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्पीड रेंजेस फ्रॉम 1.5 टू रफली अराउंड 2.5। हमें नोजल ब्लॉक्स उसका चेंज करना पड़ता है मैनुअली, एंड दैट्स हाउ वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ दैट। तो ये क्या था सर कि ये बहुत छोटा टेस्ट सेक्शन हमें वहाँ पे मिलता था, ऑलमोस्ट एक छोटा मोटा बोल्ट के साइज का मॉडल्स हम लोग वहाँ पे रख पाते थे, तो काफ़ी परेशानी होती थी उसमें, कुछ मेजरमेंट्स वगैरह करना है तो उसमें दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि DRDO को रिक्वेस्ट किया, और DRDO ने हमें फंड किया, ये करीब 2010 की बात है। तो DRDO ने हमें 20 लाख रुपए दिए थे, और ये नीचे में जो सेकंड फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये हम लोगों का इन हाउस बिल्कुल बनाया हुआ है, सारा डिज़ाइन हम लोगों ने किया था, और सिर्फ 20 लाख रुपए में किया था। अगर आप इसको बाहर कभी अगर किसी कंपनी से बात करें तो शायद ये करोड़ों में आएगा। तो द कंप्लीट डिजाइन वाज डन बाय अस, आवर टीम, एंड वी गॉट इट फैब्रिकेटेड आउटसाइड समवेयर इन पुणे। तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे लाकर स्टैब्लिश किया, एंड इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ अराउंड मैक 3.5, हम लोग 3.5 तक इसमें जा सकते हैं। वाशे साहब अगर आप अलाउ करें तो, क्योंकि बहुत वैसा पॉइंट है कि बाद में भूल जाएंगे हम लोग। वाशे साहब अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ? ठीक है। ये प्रियांक जी, इस हाइट पर कितने, ये मैक नंबर्स जो आप बता रहे हैं कितने एल्टीट्यूड पर है लगभग? सर ये हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल की बात बिल्कुल जी सर, ग्राउंड लेवल पे ही ये सारा इवैल्यूएशन हमारा है। ओके ठीक है। 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर, दैट इज साउंड लेवल, यस। तो ऑलमोस्ट सर इसमें 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। ठीक जी, सॉरी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सर।
तो अभी जितना हम देख रहे थे सर वो एक ओपन सर्किट टनल था, क्योंकि उसमें एक साइड से हवा जाएगा और दूसरे साइड से हवा निकल जाएगी, और बीच में एक फैन हमारा लगा हुआ है जिसके चलते ये चीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज अ क्लोज रिटर्न विंड टनल। तो हमारे जो भी स्पेसिफिक काफ़ी प्रिसाइज टेस्टिंग्स करने होते हैं उसके लिए हमें क्लोज रिटर्न विंड टनल का ये ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो एयर है ये मूव करता है उसी डक्ट के अंदर। तो जो पहला था ओपन सर्किट, उसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है हम उससे हवा ले रहे हैं और निकाल दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अंदर में ही सर्कुलेट करेगा। तो डिफरेंस ये है हमारा कि आप यहाँ पे देखिएगा एक कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन नीचे की तरफ दिख रहा होगा, तो नीचे का जो पोर्शन है इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑफ दैट ऑफ अ ओपन सर्किट टनल, लेकिन बाकी क्या है कि उसको मूव कराने के लिए हमारा फैन अपोजिट साइड में है, और फिर हमारे वेन्स दिए हुए हैं जिससे फ्लो का मूवमेंट बड़ा स्मूथली उस साइड से होगा, एंड देन अगेन इट कम्स ओवर हियर। एडवांटेज ये मिलता है सर कि इसमें नॉइज हमारा बहुत कम आता है, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज, क्योंकि अगर हमें कुछ एकॉस्टिक स्टडीज करना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। दिस इज अ टिपिकल फोटोग्राफ ऑफ क्लोज सर्किट विंड टनल। जो ये आई मीन एक साइड से लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, यहाँ पे हमारा टेस्ट सेक्शन है, कन्वर्जिंग सेक्शन, टेस्ट सेक्शन, and then you have the diffuser, and this is how it takes place. So I've already shown you the schematic view, so we can move forward sir for this. Okay, this is for again a supersonic tunnel, जो closed circuit supersonic tunnel है। तो ये इस तरह का कुछ नजर आता है। तो हमें इसमें बाहर की तरफ से एक रिजर्वायर होगा, उसको हम लोग प्रेशराइज करेंगे और फिर हम इसके अंदर उसको मूव करा सकते हैं। तो दैट इज अबाउट क्लोज लूप सुपरसोनिक टनल। नेक्स्ट स्लाइड सर। Next sir, this is almost the same. I've just taken it from. Yes. So basically the difference over here, आप देखिएगा कि ओपन सर्किट में क्या हो रहा है कि हम बाहर से हवा सक कर रहे हैं और इधर से निकाल दे रहे हैं। क्लोज सर्किट में हम उसी एयर को रिसर्कुलेट करते हैं। तो डिफरेंस ये एक सर आता है कि जो ओपन रिटर्न विंड टनल है इसमें हमारा फैन है, काफी हाई पावर का फैन रहता है, तो इसमें साउंड बहुत है, नॉइज बहुत ज्यादा होता है। तो जिनको भी एरोकॉस्टिक स्टडीज करना है, जैसे कि क्या फ्रीक्वेंसी आ रहा है, अब एक एरोकॉस्टिक स्टडी का हम एग्जांपल आपको जस्ट छोटा सा बताते हैं। अगर सब लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे, जो फ्लाइट्स जब लैंड करता है तो जनरली आप देखिएगा कि जब लैंडिंग गियर ओपन होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आने लगता है। अगर इस चीज़ को गौर किए होंगे, जैसे लैंडिंग गियर उनका ओपन होगा तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो रीज़न ये है कि वहाँ पे एक कैविटी खुल जाता है, जो कैविटी वो नॉइज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो इस पे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च चल रहा है, अभी भी आज भी चल रहा है। और उस तरह के नॉइज़ का एनालिसिस, अब अगर हम उसको ओपन रिटर्न विंड टनल में नॉइज़ एनालिसिस करेंगे तो होगा क्या, जो फैन का नॉइज़ है, बाहर की नॉइज़ है, वो भी कैप्चर होगी। लेकिन अगर क्लोज सर्किट में करेंगे तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलता है कि इसके अंदर हम उस चीज़ से बच सकते हैं। तो हमें एग्जैक्ट जो भी एकॉस्टिक के जो भी फ्रीक्वेंसी पे हमें उस नॉइज़ को कैप्चर करना है, दैट वी कैन गेट। दिस इज क्लोज टनल ना? दिस इज क्लोज टनल, यस सर। तो इसमें सर एडवांटेज हमारा वही है कि हमें कॉस्टिक स्टडी के लिए बहुत एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और ये हमारे टेस्ट सेक्शन है, टिपिकल टेस्ट सेक्शन। आपको जस्ट ये दिखा रहे हैं कि इसमें मॉडल कैसे माउंट करते हैं। तो ये एक एरोफॉइल, एक विंग का मॉडल है जिसको हम यहाँ पे लगा दिए। ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एरोफॉइल इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसको एज टू एज लगा दिए हैं, एक साइड से दूसरे साइड तक। जो लेफ्ट साइड का फिगर है उसमें आप देखिए एज टू एज वो एक एरोफॉइल शेप वहाँ पे लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एरोफॉइल, क्योंकि एक डायमेंशन जो है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। जैसे आप एक्स वाई जेड में अगर हम इसको देखेंगे तो मूवमेंट जो है वो सिर्फ एक्स और वाई में हो रहा है, जेड को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। और अगर इसी को हम छोटा कर देंगे, अगर स्पैन वाइज थोड़ा सा कम कर दें, तो मूवमेंट हमारा जेड डायरेक्शन से भी होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ 3 डायमेंशनल एरोफॉइल। तो ये हम लोग जो अपने स्टूडेंट्स उनको बच्चों को बताने के लिए कहते हैं कि इनफाइनाइट विंग ऐसा होता है और फाइनाइट विंग अगर उसको छोटा कर दें तो उस तरह का होता है। तो जो राइट साइड का फिगर है दैट इज अ टिपिकल टेस्ट सेक्शन ऑफ सुपरसोनिक विंड टनल। इस चीज़ को हम आपको दिखाने के लिए लगा दिए थे कि इसी के अंदर हम अपना मॉडल माउंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। Now this is a typical structure inside. We have placed a model inside a wind tunnel. This is testing is going on for BMW कार। पूरी कार को इसके wind tunnel के अंदर रखा हुआ है और उसके ऊपर हम उसका फ्लो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि जो फ्लो आएगा, यहाँ से एक स्मोक डाल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वो किस तरह से उसका मूवमेंट होगा। तो दैट इज वेरी टिपिकल थिंग विच इज बीइंग डन, एंड these things are done mostly in the NASA labs। और आजकल तो काफ़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज भी अपना विंड टनल्स को लेके आ रहे हैं, क्योंकि आजकल रिसर्च इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर।
नाउ ये जो आप एक देख रहे होंगे जो लेफ्ट साइड में एक फोटोग्राफ है, दैट इज ऑफ VDT, वी कॉल इट एज अ वेरिएबल डेंसिटी टनल। तो हमारा डेंसिटी जब बहुत बारी डेंसिटी हमारा चेंज होता है, अगर हम शॉक वेव में है या अगर हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं तो हमारी डेंसिटी में डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि एट सी लेवल डेंसिटी कुछ और है एयर की, और अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो डेंसिटी कुछ और होगा। तो उस चीज़ के लिए हम एक वेरिएबल डेंसिटी टनल भी यूज़ करते हैं। इट इज़ देयर इन नासा लैब्स, आई मीन मोस्टली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये बहुत लिमिटेड है, वेरिएबल डेंसिटी टनल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ हाई रेनॉल्ड्स नंबर विंड टनल, क्योंकि अगर हमारा डेंसिटी वेरी करेगा या हमारे फ्लो स्पीड्स वेरी करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इनर्शिया फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर को देखेंगे तो दैट इज रो VD by म्यू। Rho is your density, V is your velocity, D is the typical characteristic length, we can call it as L as well, divided by mu, that is your dynamic viscosity. तो अगर हमारा फ्लो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा करना है, रेनॉल्ड्स नंबर उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा, तो वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ विंड टनल्स जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, या तो हम डेंसिटी चेंज कर दें या हम रेनॉल्ड्स नंबर चेंज कर दें, दैट्स व्हाट। अगर हम सिर्फ वाटर को यूज़ करेंगे तो जो नॉर्मल एयर के साथ जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा उससे 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज अराउंड 1.224। उसके जगह अगर हम एनालिसिस वाटर के साथ करेंगे तो दैट इज 1000 kg per meter क्यूब, तो हमारा 1000 टाइम्स वो चीज बढ़ जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट। नेक्स्ट स्लाइड सर। लगभग कितना नंबर रहता है वहां पर रेनॉल्ड का? रेनॉल्ड नंबर लगभग सर रेनॉल्ड्स नंबर सर, अगर हम नॉर्मल अगर किसी बॉडी की बात करेंगे, मान लीजिए करीबन 17-18 मीटर पर सेकंड की बात करें, तो कोई भी सर्कुलर बॉडी का सर रफली अराउंड 35-40,000 रेनॉल्ड्स नंबर रहता है। और अगर सुपरसोनिक में बात करेंगे तो सर ऑलमोस्ट 10⁶ का ऑर्डर उस पर रहता है। दिस इज फॉर नॉन टर्बुलेंट मोशन। सर टर्बुलेंस तो जनरली हर चीज़ में रहता है, क्योंकि जब तक हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है अगर वो 100 से कम है तब तो नॉन टर्बुलेंट रहेगा, पर 100 से जाता है तो वी एज्यूम कि वहाँ पे टर्बुलेंस शुरू हो जाता है। जी सर। तो इस पे भी मतलब काफ़ी लोअर लेवल पे सर अगर उसको माइक्रोन्स लेवल पे देखेंगे तो वो टर्बुलेंस शुरू हो जाता है वहाँ पे। बट एज अ थंब रूल, जैसे हम पाइप फ्लो में पढ़ते हैं सर, एज अ थंब रूल हम पढ़ते हैं कि 2000 से नीचे में लैमिनार है और 2000 से वो तो फ्लूइड के, वो तो वाटर के लिए है, पाइप फ्लो के लिए आता है, वो वाटर के लिए। अगर जी सर, और अगर इसके लिए बात करेंगे किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2 × 10⁵ होता है, उसके नीचे है तो लैमिनार फ्लो है एयर के लिए। तो दैट्स हाउ। नाउ ये वाली फोटोग्राफ को अगर आप देखिए, एक पूरा जो SLV का मॉडल है उसको रखा हुआ है इस टनल के अंदर, एंड दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू टेस्ट। सो आई एम जस्ट शोइंग यू अ टिपिकल फोटोग्राफ ऑफ अ विंड टनल, दैट हाउ इट लुक्स लाइक एंड हाउ द पीपल आर गोइंग टू वर्क इनटू दिस काइंड ऑफ wind tunnels. Basic structure is going to be the same what we have seen in our previous photographs, right? And rest of the thing continues. So next slide. Now this is a typical vertical takeoff or short takeoff and landing wind tunnels, जिसमें आप देख रहे होंगे ऐसे तो कुछ बच्चे यहाँ पे वो टेस्टिंग कर रहे हैं हाई स्पीड कार्स की। मल्टीपर्पज टनल्स होते हैं। इस साइड में जो राइट साइड के फोटोग्राफ्स है उसमें आप देखिए कि एक हेलीकॉप्टर का टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर। तो द वे इट इज मूविंग, जो हेलीकॉप्टर वहाँ पे है, तो जिस तरह से उसके ऊपर थ्रस्ट पड़ेगा तो इट हैज टू टेक ऑफ। सो व्हाट इज द थ्रस्ट व्हिच इज एक्टिंग ऑन टू दैट बॉडी, दैट कैन बी टेस्टेड ओवर देयर। तो एक टिपिकल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर का मॉडल लेके उसके अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ विंड टनल। सर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अ टिपिकल फ्री फ्लाइट टनल। सर इसका टेस्ट सेक्शन काफी बड़ा होता है और इसमें हम एक मॉडल को एक वायर से बांध देते हैं। तो अगर इससे हम उसको ये हैंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि जब जो फ्लो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना मूवमेंट करेगा। तो हाउ स्टेबल इट इज, दैट्स व्हाट वी कैन ट्राई टू इवेलुएट। और फिर इसके जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है, मूवमेंट के वक्त इसके ऊपर क्या हो रहा है, कैसा प्रेशर से कैसा फोर्सेस है, वो सारे चीज़ों को हम निकाल सकते हैं इसके ऊपर। दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ फ्री फ्लाइट टनल। इसमें हम किसी चीज़ से उसको स्टिंग से बांधते नहीं है, उस मॉडल को हम छोड़ देते हैं एक वायर से सस्पेंड करके। तो दैट्स हाउ वी ट्राई टू गेट इनटू दिस। नेक्स्ट स्लाइड सर। This is a vertical tunnel. This tunnel left side is in Germany. This is a typical vertical tunnel in which we actually try to find out कि sky diving कैसे हम कर सकते हैं। जो काफ़ी लोग sky diving करते हैं, तो sky diving में आप ये सोचिए कि अगर वो stable नहीं है and the person starts rolling, तो वो अपना पैराशूट भी नहीं खोल पाएगा उस चीज़ में। तो it's going to be very dangerous. तो इसलिए इस चीज़ की भी टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज what is a typical vertical tunnel what is there. Next slide sir.
I'm sorry, I'm going very fast. No, यार क्योंकि सर वो थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, so I thought हम थोड़ा सा Please glimpse be देते हैं on सारे your own, tunnels yes. का. It's a closed So tunnel. this is a stability, yes sir, thank you. So it's a stability tunnel. So this is again a closed circuit tunnel आप देख रहे होंगे, और जो यहाँ पे जहाँ टेस्ट सेक्शन है वहीं पे हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पे दिखाई देता है, एंड वी ट्राई टू इवेलुएट कि कोई भी अगर बॉडी वहाँ पे है तो उसका स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, इस चीज़ों को हम वहाँ पे इवेलुएट करते हैं. बहुत बड़ी इसके जगह पे सर, कंट्रोल रूम के जगह हम वहाँ पे हमारा पूरा प्लेनम चेम्बर एक लगाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एनाकॉइक चेम्बर, जिससे कि हम लोग एकॉस्टिक स्टडी करते हैं. तो इस चीज़ को सर हम नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाएंगे जरूर. सो नेक्स्ट, दिस इज अ प्रोपेलर टनल. इसमें सर क्या होता है कि जैसे हमारे जो भी एयरक्राफ्ट, जो प्रोपेलर बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं, तो उसमें हमारा किस तरह का ये टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, तो पूरे एयरक्राफ्ट का मॉडल प्रोपेलर बेस्ड मॉडल टनल के अंदर हम डाल सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्रोपेलर टनल. नेक्स्ट स्लाइड सर. प्रपल्शन टनल, इसमें हमारे जेट इंजन्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं हम कि अगर जेट इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टनल आप देख सकते हैं, इसका साइज आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये टनल होगा. क्योंकि जो लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो खड़े हैं, तो इमेजिन कि हाउ दिस इज जस्ट द टेस्ट सेक्शन. नाउ इमेजिन दैट हाउ बिग द होल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी. शायद हमारे बीआईटी का पूरा मेन बिल्डिंग ये विंड टनल सेक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. तो इस तरह का मतलब ऑलमोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ अराउंड 40-50 एकर्स के आसपास ये टनल का सेटअप होगा वहाँ पे. तो दिस इज व्हाट इज योर प्रोपल्शन टनल इन विच वी कैन टेस्ट दिस काइंड ऑफ फ्लाइट मॉडल्स. नेक्स्ट स्लाइड सर. नाउ दिस इज आइसिंग टनल. इसमें सर क्या होता है कि इसमें हम लोग जो मान लीजिए कहीं साइबेरिया वगैरह जो एयरक्राफ्ट जा रही हैं, या काफ़ी अंटार्कटिका या आर्कटिक पोल्स वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह का आइसिंग हो जाता है एयरक्राफ्ट के ऊपर. तो अगर आइसिंग होगा तो नेचुरली उसके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे. तो ये क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग आइसिंग टनल यूज़ करते हैं. कि इसमें हम एक आई मीन आइस का लेयर वहाँ पे आ गया, काइंड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, एंड देन वी स्टार्ट द फ्लो, एंड देन वी सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म. तो ये आइसिंग टनल, दीज आर वेरी आई मीन हाई एंड इक्विपमेंट्स. तो दिस इज आइसिंग टनल. नेक्स्ट स्लाइड सर. Now we have a low turbulence wind tunnel. ये जैसा कि हम पहले बताए थे सर, ये wind tunnels में जो हमारा we assume that we are moving in a stagnant flow. तो जो low turbulence wind tunnels होता है सर, इसमें क्या करते हैं, जहाँ से हमारा सक्शन होता है, आप टॉप साइड में देख रहे होंगे, टॉप साइड में जहाँ पे कन्वर्जिंग सेक्शन है, वहाँ पे कुछ स्क्रीन्स जैसा वो बना हुआ है. यस, दिस साइड सर, इन ई सेक्शन में स्क्रीन्स जैसे बने हुए हैं. वो डिफरेंट साइज ऑफ मैशेस होते हैं, जो वायर मैश होते हैं सर, जो हम लोग घर की जाली में लगाते हैं. तो डिफरेंट साइज ऑफ मैशेस को वहाँ पे लगाते हैं, सो दैट आई कैन ब्रिंग डाउन द टर्बुलेंस लेवल. सो बेसिकली टर्बुलेंस ये होता है सर कि एयर में कुछ भी फ्लक्चुएशंस होगा, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ टर्बुलेंस, क्योंकि इट इज नॉट यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट्स व्हाट वी कैन से, आई मीन इन वेरी सिंपल थिंग्स. और मे बी द स्टूडेंट से कि ये जिगजैग मोशन होता है फ्लो में, और बहुत कुछ होता है, राइट. सो रैंडम मोशन होता है, तो उस टर्बुलेंस को हमें डिक्रीज करना है, सो दैट वी गेट ऑलमोस्ट टुवर्ड्स अ स्टैग्नेंट फ्लो. दैट्स व्हाट वी ट्राई टू सी. स्टैग्नेंट फ्लो मींस कि हमारा डिस्टर्बेंस उस फ्लो में बहुत कम हो. दैट्स व्हाट वी ट्राई टू सी ओवर देयर. सो नेक्स्ट स्लाइड सर. Yeah. Now these are some of the testings what is being done in a wind tunnel. Basically एक 2-dimensional wind tunnel कह सकते हैं इसको, जहाँ पे कि आपका जो टेस्ट सेक्शन का स्पैन है वो बहुत छोटा है. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लेयर्स ऑफ स्मोक हम यहाँ पे डालते हैं बहुत सारे ट्यूब से, और ये देखते हैं कि इस बॉडी के ऊपर किस तरह का फ्लो हो रहा है. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ स्मोक कम विंड टनल. तो इस चीज़ को हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं. अगर आप डिस्कवरी चैनल या किसी पे देखेंगे तो इस तरह के काफ़ी एनालिसिस इन्वेस्टिगेशंस दिखाते हैं वो लोग. ये इसको हम कहते हैं स्मोक फ्लो विजुअलाइजेशन. नेक्स्ट स्लाइड सर. So the densities of the smoke is varying from one layer to another? Sir, it's almost the same, and we have a series of tube through which the smokes are being sent. तो वो एयर के साथ ही फ्लो करता है, और वो आई मीन इसको आप कह सकते हैं सर कि एक तरह का स्ट्रीमलाइन इसके ऊपर वो बना दे रहा है कि किस तरह का वो दिखाई देगा. जो पाथ्स है उसको वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. अब जैसे सर पीछे की साइड में देखिए, कार के पीछे साइड में वो बिल्कुल रैंडम हो गया है, और बाकी पूरा यूनिफॉर्मिटी है वहाँ पे, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ लैमिनार फ्लो दिख रहा है. लेकिन पीछे के साइड में देखिए तो काफी डिस्टर्बेंसेस है. तो वी कैन से दैट ओके वी हैव सम डिस्टर्बेंस इन द बैक साइड ऑफ दिस कार, एंड व्हिच इज लाइकली टू गोइंग इट इज गोइंग टू हैव, बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग टू हैव मोर एंड मोर ड्रैग ऑन द बॉडी.
तो ये सर हम इसको कह सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को सर्टेन करने के लिए हमें वहाँ पे मेजरमेंट्स करने होंगे कि ठीक है ये हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया, पर मेजरमेंट्स क्या बताएगा, कितना ड्रैग है और क्या हो सकता है, क्या फोर्सेज आ रहे हैं, क्या वेलोसिटीज है, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू शो। इसकी भी एक स्लाइड सर हम रखे हैं, दैट आई विल शो यू। That's good. नेक्स्ट स्लाइड सर। दीज आर ऑटोमोबाइल टनल्स। सो ऑटोमोबाइल टनल्स में फिर से हम इसका मॉडल को छोटा करके एंड देन वी ट्राई टू मेंटेन द सेम रेनॉल्ड्स नंबर एंड देन वी ट्राई टू सी कि आखिर इस पे हो क्या रहा है। सर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा कि जो भी कार्स होते हैं तो हाई स्पीड कार्स में पीछे की तरफ एक स्पॉइलर दिया हुआ रहता है Yes. है ना। तो उसका रीजन क्या है, आखिर हम स्पॉइलर क्यों दे रहे हैं? अगर हम स्पॉइलर नहीं देते हैं तो वो एक एरोफॉइल की तरफ बिहेव करेगा, जो भी हमारा व्हीकल है वो एरोफॉइल की तरफ बिहेव करेगा, एंड इफ यू गो एट अ वेरी हाई स्पीड you will get a upward force onto that, due to which you are going to have a very huge moment, और उससे आपका कार टॉपल हो सकता है। तो जब हम वहाँ पे एक स्पॉइलर देते हैं तो उससे क्या होता है कि फोर्सिबल फ्लो का सेपरेशन कराते हैं ताकि वो मोमेंट उस बॉडी पे ना लगे। सो हाउ वी आर कमिंग ऑन टू दैट, दैट इज फ्रॉम योर विंड टनल टेस्टिंग्स ओनली, राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कि विंड टनल की टेस्टिंग बहुत जरूरी है इनके ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे अभी सर आप फरारी को देखिए तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर पर आवर को वो टच करता है, लेकिन सर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप ग्राउंड इफेक्ट्स को अगर देखिएगा, जो आई मीन जो ग्राउंड क्लियरेंस, हम लोग बहुत बार कहते हैं कि नहीं गाड़ी का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा होना चाहिए ताकि इंडियन रोड्स के ब्रेकर को वो पार कर सके। तो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू से। तो इसमें सर क्या होता है बिल्कुल कि अगर हमारा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है और हमारे कार की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है तो उस पर फोर्सेस का बहुत मैसिव ड्रास्टिक इफेक्ट हो सकता है, आपके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए जो भी हाई स्पीड कार्स होगी आप देखिएगा उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। फरारी को आप हमारे गांव के रोड पर नहीं चला सकते हैं। तो दैट्स हाउ इज द डिफरेंस ओवर देयर, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। इट इज मेड फॉर अ डिफरेंट पर्पस। नेक्स्ट स्लाइड सर। या दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड इफेक्ट, कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर किस तरह का मूवमेंट आएगा, कैसा फोर्सेज आएगा। आप देखिए उस टनल के अंदर इस पूरे कार को ये टाई करके रखे हुए हैं और उसके सारे सेंसर्स उसके बॉटम में लगे हुए होंगे, या तो हम उसके फ्लोर पे लगाते हैं सेंसर्स या फिर हमारा स्ट्रेन गेज बैलेंस एक उसके ऊपर रहता है। तो दैट्स हाउ वी ट्राई टू सी कि उसके ऊपर क्या फोर्सेज आ रहे हैं। आप जो फर्स्ट फिगर में सर आप देख सकते हैं ट्रक के मॉडल, ट्रक का एक छोटा मॉडल है और वो जो आदमी है वहाँ का जो भी टेक्नीशियन है ही इज ट्राइंग टू सी कि हाउ इज द ग्राउंड क्लियरेंस, और वो सारी चीज़ों को वहाँ पे एनालाइज कर रहा है एंड देन दे विल बी डूइंग द टेस्टिंग। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए विंड टनल बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये फोर्ड वाले एक विंड टनल अपने लिए बना रहे हैं और इसके लिए वो ऑलमोस्ट $200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर कोई कंपनी अपने विंड टनल टेस्टिंग के लिए $200 मिलियन अगर यूज़ कर रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस चीज़ का एप्लीकेशन कितना जाता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द फ्यूचर कार्स। तो हमारे हिसाब से तो इंडिया में आज भी इस चीज़ पे उतना ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग सब कुछ मेक इन इंडिया, होपफुली एक कार की मैन्युफैक्चरिंग भी आजकल हो रही है। तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग्स। और हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बाकी IITs और IIC में काफ़ी अच्छे विंड टनल्स हैं। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो हैविंग, बट नॉट ऑफ अ वेरी हाई टेस्ट सेक्शन साइज। यस, वी डू हैव विद सम लिमिटेशंस। नेक्स्ट स्लाइड सर। Now this is another wind tunnel, what we call it as a climatic wind tunnel। इस पे सर जैसे हम ठंड में जा रहे हैं, फॉग आ गया या और भी बहुत तरह का क्लाइमेट चेंजेस होता है, तो उसमें किस तरह का बिहेवियर होगा बॉडी के ऊपर। अगर फॉग है तो शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ डेंसिटी वेरिएशंस होगा, तो उससे हमारे फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, बॉडी के एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इन चीज़ों की टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अगेन दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लाइमेटिक विंड टनल, द सेम थिंग, आइसिंग वगैरह यहाँ पे भी हो रहा है। क्या प्रेसिपिटेशन है शायद ये? बिल्कुल सर, काइंड ऑफ हाँ उसी तरह का कुछ है जो कह सकते हैं हेल और ये सब है। ये सर एक टेस्टिंग है जो BMW की बाइक पे ये कर रहे हैं। जब रेन हो रहा है, रेन के वक्त अगर वो कोई चला रहा है तो क्या होगा, बारिश होते वक्त भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज आप जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होगा बॉडी का परफॉर्मेंस, जो व्हीकल है उसका परफॉर्मेंस बहुत अफेक्टेड हो सकता है। तो ये बारिश के चलते उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए इस चीज़ को भी। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें नीचे क्या है सर? वो उसका जो बॉटम साइड है उस पे सर वो एक रोलर बेल्ट रहता है जिसके ऊपर आप उस चीज को चला रहे हैं।
अच्छा अच्छा, वो विंड की स्पीड को देने के जी लिए। सर, तो उसका रिलेटिव वो वेलोसिटी हम निकाल के ऑलमोस्ट उसको जीरो करते हैं उस जगह पर, ये चीज़ है वहाँ। नाउ ये सर एरोकॉस्टिक टनल है जिसकी हम बात कर रहे थे, अगेन क्लोज सर्किट टनल। और इसमें सर जहाँ पे टेस्ट सेक्शन है, आप नीचे साइड में देखिएगा, जो नीचे साइड का वो बड़ा सा स्क्वायर सेक्शन है, दैट इज ये है। द एरिया। जी सर, जो स्क्वायर सेक्शन है दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेनम हॉल, वहाँ पे कहते हैं, या एकॉस्टिक फैसिलिटी जो है ना, कोई चेम्बर हम उसको कहते हैं। उसके अंदर कुछ भी करेंगे तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, जो फ्लो हो रहा है सिर्फ उसी चीज़ को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे स्पेसिफिक ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, जो माइक्रोफोन्स होते हैं, तो उससे हम निकालते हैं कि हमारा प्रेशर वर्सेस टाइम रिलेशन क्या है, एंड देन वी ट्राई टू इवैल्यूएट दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर मेरे पास टाइम है सर, अभी 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, ओके ओके। वासे साहब बताएंगे सर, तो ये वासे साहब इज द बॉस। Thank you Yeah. so much. Please carry on. Okay, maybe another 5 to 10 minutes more sir. यस प्लीज प्लीज। सो नाउ जो अभी हम देख रहे थे सर, जो प्लेनम हॉल जिसको हम बता रहे थे, तो ये हम लोग बीआईटी मेस्ट्रा में एक एनाकॉइक जेट फैसिलिटी लाए हैं। तो ये पूरा एनाकॉइक चेंबर हमारे पास है, बिल्कुल सर। ये बिग बॉस अगर आप लोग जो देखते होंगे तो बिग बॉस के घर की तरह है, अंदर घुस गए तो आवाज़ बाहर नहीं आएगी। और जो भी टेस्टिंग हम करेंगे इस चीज़ के अंदर, अंदर से आवाज़ बाहर नहीं आती है और बाहर से आवाज़ अंदर नहीं जाती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव। नेक्स्ट स्लाइड सर। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। अंदर में हमारी एक जेट फैसिलिटी आ रही है, फ्री जेट फैसिलिटी, जो रॉकेट का जो प्लूम रहता है उसकी एनालिसिस हम करेंगे इसके अंदर। तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। जो इसका सारे कैसे, जो उसको कहते हैं क्या, नॉइज का जो वो रिड्यूस करता है उस, जी सर, स्पॉन्ज वगैरह, जी स्पॉन्ज वगैरह इसको रिड्यूस करता है। तो दैट्स व्हाट वी डू। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये अंदर से ये आपको पूरा स्पॉन्ज दिखा रहे हैं कि कैसे ये नॉइस लेवल को रिड्यूस करता है। इससे भी सर बेहतर आता है। अब बहुत बार हमारे पास तो परचेज के थ्रू भी जाना है तो किसी न किसी कारण से L1 पे ही जाना पड़ता है, तो दिस इज व्हाट वी कुड गेट, है ना। अदरवाइज इससे भी बेटर चीज आते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। दिस इज अ टिपिकल वाटर टनल। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ डेंसिटी इज डिफरेंट। तो इन प्लेस ऑफ एयर वी आर यूजिंग वाटर। तो अभी हमारा कम फ्लो वेलोसिटी में भी इसका रेनॉल्ड्स नंबर जो डेंसिटी है वो 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो इस तरह की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी हैव जनरल पर्पस विंड टनल्स। फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति मूव कर रहे हैं उनके ऊपर क्या असर हो सकता है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबके लिए टनल्स डिफरेंट हो सकते हैं। और कुछ जनरल पर्पस टनल होते हैं जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। विंड पावर डिवाइसेस, विंड मिल का अगर हमको स्टडी करना है, सोलर पैनल्स की स्टडी करनी है सर, सोलर पैनल्स लगा देते हैं। अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी है तो उसके स्टैंड पे फटीग फेलियर हो सकता है, तो उस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। एंटेनास आजकल सारे छतों पे वो टाटा स्काई और जो भी एयरटेल वाले वो सब दे रहे हैं, तो उसकी स्टडी भी हम लोग करते हैं। सेल्स, बोट सेल्स की बात की, ब्रिजेस, टेकोमा ब्रिज की हम बात की, अगर मौका लगे सब तो ज़रूर देखिए जो टेकोमा ब्रिज फेलियर है उस चीज़ को। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्रिकेट बॉल, शटल कॉक्स, ये सब की टेस्टिंग हम विंड टनल के अंदर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली सर, क्रिकेट बॉल का एक स्टडी जो यहाँ पे किया गया था, IIT कानपुर में डॉक्टर संजय मित्तल हैं उनके से किया गया था। और जो पाकिस्तानी बॉलर्स होते हैं उनका जो स्पीड रहता है सर, बॉल की स्पीड करीबन 150 के बियॉन्ड रहती है। और जो रिवर्स स्विंग होता है, ये स्टडी में पाया गया कि जब तक हमारा 148 किलोमीटर बॉल की स्पीड क्रॉस नहीं कर, तो इसीलिए इंडिया में मैक्सिमम तो मीडियम फास्ट पेसर हैं, इसलिए वो लोग रिवर्स स्विंग बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स या मैकग्राथ या इस तरह के जो भी थे वो बड़ा अच्छा रिवर्स स्विंग वगैरह करते हैं। तो दैट्स हाउ इट कुड कम आउट फ्रॉम दिस विंड टनल स्टडी। और ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट एकेडमी है वो लोग विंड टनल टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये एक एनवायरमेंटल टनल है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जो हम आपको पहले वो पिक्चर दिखाए थे पहले कि बिल्डिंग्स अगर वहाँ पे हैं तो किस तरह का इफेक्ट हो सकता है बिल्डिंग्स के ऊपर। तो इस तरह के लिए हमें एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर विंड टनल में जाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अंदर से इस चीज़ को दिखाएंगे। Yeah, so you can see a complete city is established inside a wind tunnel and then we try to see कि इसके सारे मॉडल्स के ऊपर, सारे बॉडीज के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। This is again the same, almost same thing. Now the types of investigation what we do over in our wind tunnels, qualitative investigations करते हैं, जैसे फ्लो विजुअलाइजेशन। तो हम मॉडल के ऊपर सरफेस पे कुछ एक मिक्सचर बना के उसको स्प्रे करते हैं और फिर जब टनल स्टार्ट होता है तो वो मिक्सचर एक दूसरे से स्प्रे करके और
वो मिक्सचर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो एक कुछ लाइंस वगैरह बनाते हैं, कुछ पिक्चर्स आगे होगा जो आपको हम दिखाएंगे, जिसको हम कहते हैं सरफेस फ्लो विजुअलाइजेशन। उसके अलावा एक लेजर शीट हम डालते हैं अपने मॉडल के ऊपर और एक साइड से स्मोक सीड करते हैं या फॉग सीड करते हैं, तो जैसे वो सीडेड पार्टिकल्स लेजर के संपर्क में आता है तो वो इल्यूमिनेट हो जाता है, एंड देन वी ट्राई टू सी कि उसके ऊपर कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। देन वी हैव मिनी टफ फ्लो विजुअलाइजेशन। ऊन के धागे को एक इस तरह से लगाते हैं ताकि वो दिखाए कि हमारा फ्लो कैसा वहाँ पे ओरिएंट हो रहा है। फिर वी हैव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं, जो क्वांटिटी है उसको हम निकालते हैं, सच एज फोर्सेस, मोमेंट्स, प्रेशर, वेलोसिटीज, और कुछ नए टेक्निक्स हैं जैसे PIV, पार्टिकल इमेज वेलोसिमेट्री होती है। जो फिजिसिस्ट है वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल ये काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट आता है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ का है अगर हम 3 कंपोनेंट पे जाते हैं। देन वी हैव PSP, प्रेशर सेंसिटिव पेंट्स। कुछ पेंट्स ऐसे आते हैं जिसको हम अपने बॉडी के ऊपर लगाते हैं और फिर जब हम विंड टनल स्टार्ट करते हैं तो वो पेंट जो है वो दिखाता है कि किस तरह का प्रेशर आ रहा है, तो उस तरह से ये करता है। और NAL में वार्षिने सर शायद डिस्कस कर रहे थे, NAL में इसके एक्सपर्ट्स हैं PSP के, डॉक्टर चन्ना राजू हैं, तो ही इज क्वाइट अवेयर ऑफ दिस एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम DRDO फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग्स। फिर हॉट वायर कांस्टेंट टेम्परेचर एनीमोमीटर होता है, जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस देखते हैं हम लोग कि किस तरह का वेलोसिटी है, उसका क्या फ्लक्चुएशंस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट्स व्हाट वी सी। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आपको फ्लो विजुअलाइजेशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला आप देखिए लेजर शीट्स की विजुअलाइजेशन है, जहाँ पे हम वोटिसेस देख सकते हैं जो फ्लो कैसे ओरिएंट कर रहा है अपने आप को, ये फर्स्ट फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट फिगर में एक सरफेस ऑयल फ्लो विजुअलाइजेशन है, जिसपे कि आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ जो ऑयल फ्लो हम बता रहे थे कि वो कैसे स्प्रे करके और किस तरह का पैटर्न वो अंदर ले रहा है, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू फाइंड आउट। फिर एक फोटोग्राफी टेक्निक होती है सर, श्लेरन फोटोग्राफी हम कहते हैं उसे, जिसमें वी ट्राई टू सी कि हमारा डेंसिटी वेरिएशंस को हम कैप्चर करते हैं। तो एक टिपिकल ऑप्टिकल मेजरमेंट टेक्निक होता है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि डेंसिटी वेरिएशंस, तो जो हम श्लेरन फोटोग्राफी में देख रहे हैं सर, जो डार्क लाइन है, these are the shock waves. We cannot see that using a naked eye, but yes, we can see it using a Schlerin photography. And then we have this discussed earlier as well, smoke and tuff flow visualization. Next slide, sir. Now this is again the same thing, a kind of a smoke flow visualization which we have already seen on the car model. Next slide, sir. ये हमारे लेजर से इल्यूमिनेट किया हुआ है, एंड देन वी आर सीडिंग द स्मोक पार्टिकल। सो दिस इज हाउ वी सी कि इस तरह के बॉडी पे कैसा फ्लो पैटर्न ये ले रहा है। तो आप आगे देखिए तो लेफ्ट साइड में लैमिनर फ्लो है, एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ टर्बुलेंट फ्लोज काइंड ऑफ थिंग ओवर देयर। नेक्स्ट स्लाइड सर। दीज आर द टफ फ्लो विजुअलाइजेशन। कैसे छोटे छोटे ऊन के धागे हम वहाँ पे लगाते हैं, वुलन जो थ्रेड्स होते हैं उसको हम पेस्ट करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू सी, जैसे आप देखिए कि अल्फा 10 अल्फा ये एंगल ऑफ अटैक होते हैं हमारे टर्म्स में, तो फ्लो का ओरिएंटेशन किस तरह का है, दैट्स व्हाट वी कैन सी। आप कार के मॉडल को अगर देखिए, वी आर शोइंग इट फ्रॉम द रियर साइड, तो जो ओरिएंटेशन है कार के ऊपर, सारे वुलन टफ्स का ओरिएंटेशन बिल्कुल अटैच्ड है, लेकिन आप पीछे की तरफ देखिए तो सारे इधर उधर मूव किए हुए हैं। तो वी से दैट ओके वी हैव सम डिफरेंसेस ओवर देयर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। This is a typical oil flow visualization which has been done in a supersonic speed. तो सुपरसोनिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमारा शॉक वेव कहाँ पे आएगा, उस जगह पे वो फ्लो का सेपरेशन दिखाता है। तो बीच में कुछ मॉडल्स, कुछ छोटे छोटे मॉडल्स लगे हुए। ये सर ऐसा है जैसे कि रॉकेट के ऊपर कुछ हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो सेंसर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज दो सेंसर्स आर एक्सपोज टू सुपरसोनिक स्पीड्स। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दोस सेंसर्स, दैट्स आल्सो अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उस चीज़ की स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से बहुत सारे फ्यूल लाइंस आते हैं रॉकेट्स के ऊपर, तो दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू अ वेरी हाई सुपरसोनिक स्पीड। तो वी कैन लुक इनटू दोस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन एंड फाइंड आउट कि क्या हो सकता है वहाँ पे। ये सारे प्रेशर सेंसर्स है ना सर, ये मॉडल्स हैं, छोटे छोटे MS के मॉडल्स हैं, जिसको कि हम लोग विंड टनल के प्रेशर वेरिएशन पर काम सेंस करते हैं, या टेम्परेचर वेरिएशन या स्पीड वेरिएशन से। सर बेसिक एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो रॉकेट के ऊपर कुछ प्रेशर सेंसर्स होते हैं। हाँ, प्रेशर तो या तो हम उसको उठा सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं वहाँ पे, जैसे आपके रिवेट्स हैं या कुछ जॉइंट्स है, तो ये भी इसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। दैट्स व्हाट वी कैन डू इन दिस काइंड ऑफ। या सर आप देख लीजिए जैसे रिवेट्स वगैरह फाइटर एयरक्राफ्ट पे दिखाई पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दैट इज जस्ट लाइक अ ऑब्स्टेकल ऑन अ फ्लैट प्लेट, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्लाइड सर। आई थिंक या इट्स अ थैंक यू स्लाइड। सो थैंक यू सो मच सर। आई नो दैट इट वाज
बहुत ज्यादा था। नहीं ज्यादा नहीं, content- वो आपने बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं हमारे लिए सर। मैं जरा इसको बंद करूं क्योंकि मैं अपने सवाल नहीं लिख पाया सर। और पहले दूसरों के सवाल लीजिए सर, फिर मेरे सर सवाल। बिल्कुल सर। Thank you, Priyank ji. I think it was a very, very useful talk. थैंक So यू सर। many people had a different impression or connotation about the wind tunnel. Some people thought it is half a kilometer by half a kilometer. Somebody thought it is only good for aeroplane and aircraft. Somebody thought uh, that it is just to test the strength of a aircraft or anything flying in air, or at the most how best it could take speed. But your lecture clearly demonstrated it's not only the air aviation but also road aviation. Even cars are fully dependent on these testings. And because whenever you are going to buy even a normal car like Ritz or Desire, you have to see the aerodynamics, how good the aerodynamics are, and that will define how good or how fuel efficient a car could be. Of course, there are other parameters like luxury, comfort, safety, uh, which are other parameters, but definitely uh, another thing which you showed and very clearly demonstrated that wind tunnels need not to be horizontal or slanting. It could be vertical. It could be a combination of vertical and horizontal, which also gives a very good impression. I think a very good understanding about the subject. So I thank you from my heart, and I request our audience. Of course, number have now dipped. We had at the peak about nearly 40 people. But if any of you have got some questions in your mind, please raise your hand. And Gaganji has raised his hand first, so I invite him to have his questions. Thank you, sir. Uh, Priyanka, see, right from the beginning, you were talking about the pressure. I mean, I can say that a majority part of your lecture was demonstrating in terms of the pressure calculations, जी सर। and then the scattering effects through smokes, etc. But see, if you see, if I suppose the aircraft is landing now, there is some tall building. Then it's not only that the pressure with the air flowing through the aircraft exerts the pressure on the buildings, but it's the other way around as well. That the reflections from these tall buildings reach to the aircrafts and then disturbs the whole aviation. Yes sir, And absolutely. often they topple. And this is one of the main reasons that we are not able to use the fourth runway of Delhi airport, because the Shiv Murti comes on the way. Okay. Only half of the runway is being used. Yes sir. This is happening even at the Ranchi, Yes sir. Yes sir. in the Ranchi airport too. The HEC chimneys are Right sir. creating problem. Yes. How do you see that this is? I mean, how well we can do it to this kind of testings through wind tunnel testings? It was number one. Can I give you one by one? I have some more questions, sir. Varshney, sure. sir. Yes, please. I think one by one is better, Okay. because then that way both you and the speaker both have Yes. clear Yeah. idea what is your question, what Yes. you are expecting. But in fact, if somebody else is in between, please raise your hand and then. Yeah. Priyank, So, Dr. yes. Priyank, please. Yes sir. So the thing is, whatever you have raised is a very right question, sir. In fact, I saw that while I was in Bangalore for some time, I saw that even the buildings were, I mean, wherever it was the old airport जहाँ पे हुआ करता था, Prana. तो वहाँ पे सर काफी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रहे थे. तो yes, that obviously is a very major problem, क्योंकि सर हाई राइज बिल्डिंग के तरफ से जो इफेक्ट्स प्रोपागेट होता है, that is huge.
क्योंकि सर इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको सर हम बताते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो ब्रिज कॉलम्स वगैरह हैं, कभी अगर आप पुल के ऊपर चढ़ के देखेंगे तो नीचे में जो ब्रिज कॉलम्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे भंवर आते हैं, और वो भंवर उस नदी में या जो भी फ्लो हो रहा है वहाँ काफी दूर तक प्रोपगेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट मे बी 200, 300 और मे बी 500 मीटर्स उतने दूर तक जाते हैं वो सारे भंवर, और फिर धीरे धीरे जाके वो डिसिपेट होते हैं। तो सर आप अगर उसी के जगह इन प्लेस ऑफ वाटर यू पुट एयर, तो उस तरह के भंवर्स एयर से और ज्यादा अनस्टेबल प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। 1000 more. Yes, sir. So that could be more dangerous towards those kind of body, and that is why it is very essential कि उस चीज का disturbance को study करके उससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर होगा। Secondly, now continuing to that, suppose if you nowadays we are using different kind of materials in place of steel, not only in aviation, not only in aircraft aviation, but still in the road transport. We are trying to use aluminum, magnesium alloys in place of iron. Yes, the aerodynamics is still a problem with them because at lower altitudes, the density of air is a greater problem. So do you think that these kind of problems can be solved by using change of materials? Sir, as far as change of material is concerned, basically if you look into aerodynamics problem, तो it is only has to deal with the body shape. क्योंकि सर उसमें क्या होगा, जैसे हम अगर MS यूज कर रहे हैं तो हमारा W ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर वेट हमारा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वी नीड टू हैव मोर एंड मोर पावर ऑफ द इंजन टू हैव दैट काइंड ऑफ लिफ्ट, जो उसकी इफिशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल अगर हम उस तरह के, जैसे सर आजकल फाइबर मटेरियल्स पे ज़्यादा बात चल रही है या स्मार्ट स्ट्रक्चर्स और ये सब की चीज़ें चल रही हैं, तो बिल्कुल इस तरह का मटेरियल्स फ़ायदेमंद तो होगा, एरोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो W है, जो वेट है, उस चीज़ में हमें एडवांटेज मिलेगा। हमें पढ़ने को यही मिलता है अलग अलग मैगजीन्स में कि यस हमारा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है by the change of this low density materials having the similar mechanical properties, but the aerodynamics is the problem. They topple. These vehicles topple. सर टॉपल तो मतलब that depends कि आपका CG वगैरह किस तरफ है। आपको याद होगा एक पुराना जो काइनेटिक होंडा स्कूटर आया था जी, वो बगल में से ट्रक निकल जाता था तो वो टॉपल हिलने लगता था, वो हिल जाता था। बिल्कुल जी सर, जी सर, बिल्कुल समथिंग लाइक दैट। जी सर, जी So can they, what is the status of research in that area? सर मेरे ख्याल से इसमें तो बहुत ज़्यादा हम नहीं देखे हैं, मतलब पर्सनली हम नहीं देखे हैं, ओके है ना, लेकिन मेरा मोस्टली टुवर्ड्स कार काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो उस चीज़ की तो स्टडी हम ज़रूर किए हैं थोड़ी बहुत, तो काफ़ी बताएं। जी 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 जी। अच्छा, ये जो आप एक सवाल और सर, वाशे साहब प्लीज प्लीज एक सवाल और सर, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं घंटों बात करना चाहूंगा। प्रियांक जी आपके पास आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एनी टाइम आ जाऊंगा जरूर, आप आइए, BIT आइए सर। आपने जब मॉडलिंग की जी, आपने जब मॉडलिंग की और एयर को वाटर से चेंज किया जी, इन ऑर्डर टू अचीव हाई रेनॉल्ट नंबर्स, नाउ देयर आर नॉट ओनली द प्रॉब्लम्स, ये तो सॉल्व किया आपने, बट एट द सेम टाइम कोलिजन प्रॉब्लम बढ़ाई, कोलिजन प्रॉब्लम बढ़ाई, उसको कैसे हैंडल किया? collision problem in the sense that in the water particles with the vehicle, water particles with the prototype. Now the momentum transfer, high momentum transfer will take place because of the mass of the water molecules. Okay सर, हमारी जो वहाँ पे स्टडी हो रही है, क्योंकि वाटर से हम मोस्टली वहाँ पे फ्लो विजुअलाइजेशन की स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हम लोग नहीं करते हैं सर उस पे। तो दैट्स हाउ वी एक्चुअली, क्योंकि जब भी सर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है तो वी प्रेफर टू डू इट विद एयर, सो दैट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। Yes, this is probably for the first time I heard that you are changing the fluid. You are changing the fluid. Yes, probably for the first. सर ऐसे तो बात हम करते ही रहेंगे, वाशी साहब और लोगों को भी मौका दें। भाटिया साहब के पास सवाल है? नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। I've got one or two comments. एक तो ये कि ये जो शॉक वेव की बात कर रहे हैं ये प्रियंक कुमार जी, इसके आगे और पीछे डेंसिटी में और टेम्परेचर में बहुत फर्क हो सकता है। These shock waves can produce lot of there is a step function in density and temperature and of course pressure also. तो ये जो है
this is a very dangerous thing for any vehicle. So therefore, they take care that the shock wave formation is minimized somehow. They give a shape or whatever, shape factor से कुछ करके, and they make it very small. Otherwise, it can cause a lot of damage to the vehicle. And the second thing is, I remember long back, there was an Anglo-French aeroplane, the first supersonic jet, and of course they had all kinds of testing and so on. But when it took flight, the buildings, they suffered a lot of damage because of, again, the shock wave. So supersonic planes जो हैं, they produce these shock waves which can damage a lot of things with which they collide. And the third is this, Gagan asked कि पानी में तो जो है density बहुत बढ़ गई, collisions बढ़ गए, but these collisions I think are taken care of by the pressure changes. The collisions, they result in pressure, and the pressure changes, whatever they take place in water, they are taken care of. Collisions are tackled through pressure changes. Sir, but at the same time, there is high momentum transfer. Yes, there is high momentum right. transfer, which is not otherwise in the case of air. भाई हाई मोमेंटम ट्रांसफर तो होगा ही, लेकिन वो दैट हाई मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो प्रेशर में बदल जाता है. Yes, true. So it is the pressure which they measure that they have to tackle. पानी में और हवा में यही फर्क है. Yes, तो प्रेशर का फर्क हो जाता है. प्रेशर का. थैंक यू भाटिया जी. मुकेश, सर एक चीज जरूर ऐड करेंगे इस पे. सर भाटिया सर के लिए एक चीज जरूर एक ऐड करना चाहेंगे. हम लोग पढ़े भी थे जब स्टूडेंट थे, तो उस वक्त जो सुपरसोनिक इस चीज़ की बात हो रही थी, तो एक फाइटर ये प्लेन का पायलट थे वो, तो ही वॉज हैविंग अ पैशन ऑफ गोइंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी. तो वो जब फ्लाइट चलाते थे तो वो बता रहे थे, रेडियो से कम्युनिकेट कर रहे थे कि आई एम एट दिस स्पीड, आई एम एट दैट स्पीड, एंड ही वॉज अबाउट टू रीच द स्पीड ऑफ साउंड. तो जैसे वो स्पीड ऑफ साउंड रीच करने वाले थे सर, द लास्ट थिंग व्हाट वाज कम्युनिकेटेड ऑन द रेडियो was invisible barrier and the plane crashed. So that's what was the last word recorded. So then people came to know कि ठीक है, it was that was the shock wave which he could not see. So that was an invisible barrier. So there was a certain difference in the density as well as pressure. जो सर बता रहे थे steep increase जो होता है, that is what was there. तो उसको कम करने के लिए आप लोअर रखते हैं ना ग्राउंड सर. स्पेस. उसमें क्या करते हैं, जैसे क्या होता है सर, अगर ब्लंट बॉडी है तो ब्लंट बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल शॉक बनता है, तो उसमें नॉर्मल शॉक में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं. तो उसके लिए सर क्या करते हैं, हम लोग बॉडी को कोनिकल कर देते हैं या स्पाइक लगाते हैं आगे में. तो स्पाइक से इस जो शॉक वेव है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. लेकिन सर उसका एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर स्पाइक हम लगाते हैं और बाई चांस अगर उस मिसाइल या जो भी बॉडी है उसको हाइपरसोनिक स्पीड पे जाना है, देन दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पे टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा. तो वो फिर आपका वो चीज़ मेल्ट कर सकता है, स्पाइक वगैरह, मतलब दे आर वेरी एक्सपोज टू डेंजर. देन अंकल, यू वुड लाइक टू हैव सम क्वेश्चन? केजी वाशना जी, आई गेस. सर आप अभी अनम्यूट कीजिए सर. सर इज माय टीचर आल्सो. मैंने काफी देर में ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये जो आपका टॉक है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज हाईली टेक्निकल, और अच्छा है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और इतना ही मैं कमेंट देना चाहूँगा. बाकी तो मुझे चूँकि ज़्यादा आपने नहीं सुन सका, तो क्वेश्चन से मेरे पास कोई नहीं है और मेरा फील्ड भी नहीं है. तो थैंक यू वेरी मच. Thank you, Uncle. Priyank ji, I have a question. You showed us about the new facility
by 4. How the wind tunnels of tomorrow going to be, and what are the changes you are expecting in time to come? Say, let's say a 10-year horizon, a 15-year horizon. Sir, the problem is these days people are more inclined towards computation part. So now there are very limited people who are working on this kind of experimental facilities. लेकिन at the same time, a computation cannot be compared that way with experiments, क्योंकि सर जो experiments है वो real चीज़ है, और जो कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, सर आप सुनिएगा आज के डेट में कि दे आर टॉकिंग अबाउट CFD एनालिसिस, जिसको भी देखिए वो CFD की बात करेंगे, बट CFD इट इज ट्राइंग टू सॉल्व सम इक्वेशंस, क्योंकि मोस्टली पीपल आर ट्राइंग टू, आई मीन इट इज क्या करें कि मोर अट्रैक्टिव हो गया है ये चीज़ आज के डेट में, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स या कुछ भी वो लोग CFD की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट टू टुवर्ड्स अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि But I always feel that after computed simulations, one should go for the actual things. Yes sir, there should be a comparison. और सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी कंप्यूटेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं. तो फ्यूचर ऑफ विंड टनल इज बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव मोर एंड मोर इंस्ट्रूमेंटेशंस इन सच अ वे सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद द कंप्यूटेशन, क्योंकि सर आज के डेट में कंप्यूटेशन से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, बहुत सारे डिटेल्स मिल जाते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट से नहीं कर पाते हैं. तो सर हमने जो नीचे में 2-3 शॉर्ट फॉर्म्स लिखा था, जैसे PIV था, पार्टिकल इमेज वेलोसिमेट्री, और PSP, और फिर हॉट वायर एनेमोमीटर, तो ये सारे अपकमिंग तो नहीं है, काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों के पास ये नहीं है, रीज़न बिकॉज कि इट इज़ वेरी कॉस्टली. तो हमें और इस तरह का इक्विपमेंट्स, और आज की डेट में सर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से जो आने वाला टाइम है उस पर हम कुछ AI बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी कर सकते हैं, सो दैट आई मेक माई कंप्यूटर इंटेलिजेंट, उसको हम नॉलेज दे दिए, एंड देन इट स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि आगे क्या हो सकता है, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं सर विंड टनल एनालिसिस के बेसिस पे. अभी रिसेंट में सर एक DRDO से एक ऑफरिंग मिला था इस चीज़ का कि इस तरह की चीज़ पे काम करना है, कि टू फाइंड आउट एक डेटा सेट हमें जनरेट करना है कि ओके दिस इज द डेटा सेट, एंड देन यू ट्राई टू प्रेडिक्ट कि क्या होगा अगर ये मैक नंबर है या वो मैक नंबर है और ये बॉडी शेप है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी. तो इस चीज़ का एक प्रेडिक्शंस काइंड ऑफ आप इसको कह लीजिए, या AI बेस्ड या बिग डेटा एनालिसिस, ये हम लोग फ्यूचर ऐसा दिख रहा है आज की डेट में सर. ये सब बज़वर्ड्स हैं जो कि आ रहे हैं, मशीन लर्निंग, AI. So even we have, as an experimentalist, we also have to get into those kind of stuff. Yeah, one more thing. I am still intrigued by your picture of New York City, where you are saying that wind vibrations to different buildings. I think this is something very common even in India. You see it in Mumbai, you see it at Trivandrum, or some other cities. What is the train called between Goa and Konkan? So entire Konkan area, yes. You may say like that. Okay. So do you think are we in India working on retrofitting of those structures, those civil structures, or because we need to have, of course, we had one major accident like tsunami, but cyclones are more frequent, and our eastern coast is more exposed to such threats. So, if you could tell us what kind of work is being done, at least academically or in practical. Yes, sir. So right now in India, emphasis on building aerodynamics is very low. बहुत कम लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और मतलब क्या बताएं सर, जैसे करने की ख्वाहिश भी रखते हैं. अब बहुत बार सर मतलब टेक्निकली हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, जब CFD में काफ़ी लोग कहते हैं नहीं हमने CFD में कर लिया, इट सीम्स टू बी ऑल राइट, बट इन एक्चुअल केस इट इज़ नॉट ऑल राइट, क्योंकि CFD में हम सिमुलेशन करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमारा जो बाउंड्री लेयर का थिकनेस आ रहा है वहाँ पे, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, तो दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मे बी दे से कि इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 मीटर या 5 मीटर. लेकिन बिल्डिंग एरोडायनामिक्स में सर एक्सपेरिमेंटली या इन रियल केस इट्स गोइंग टू बी क्वाइट लार्जर, उससे भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट्स नॉट सो ईजी टू हैंडल बिल्डिंग एरोडायनामिक्स इन कंप्यूटेशन. अभी सर अगर ये भी कहना होता है कि नहीं आप हमें विंड टनल टेस्टिंग या कुछ एक ऐसा
टेस्ट पास करके सर्टिफिकेशन दे दीजिए हाई राइज बिल्डिंग का कि ये सही काम करेगा, तो पीपल डू सम काइंड ऑफ सिमुलेशन एंड दे से कि इट विल वर्क। लेकिन सर एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, बिकॉज हमें उसके लिए टनल भी डिफरेंट चाहिए। अब सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एरोनॉटिकल टनल है उसमें हम बिल्डिंग का सिमुलेशन करते हैं। दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटायरली डिफरेंट फॉर योर एरोनॉटिकल टनल एज वेल एज दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग एरोडायनेमिक्स टनल। तो सर मेरे ख्याल में बिल्डिंग एरोडायनेमिक्स के लिए ज़रूर से इम्फेसिस देना चाहिए एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू कम आउट समहाउ, क्योंकि सर इसमें आज नहीं तो कल फेलियर्स होंगे। जैसे जैसे आजकल वो क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो रहा है, ये आप सही बता रहे हैं सर कि ये साइक्लोन वगैरह बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया है, तो बिल्डिंग्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। एंड ऑब्वियसली इंडिया में जिस तरह का हिसाब किताब है, सर्टिफिकेशन तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आई फील लाइक यस, गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड they should get have collaborations with good academic institutes so that these things can be properly rightly evaluated. नहीं तो सर accidents भी होंगे, जाने भी जाएंगी, ये होगा। Thank you, Priyank ji. Gagan ji, you were saying something. Yes, normally for a common parallels, Priyank, the wind tunnels are even in even in Thailand educational institutions too. The wind tunnels are normally characterized by their lengths. You tried to explain that the only length is not that good parameter, because in the open and close the equation changes. But normally the length of a wind tunnel means the length of the test section or the entire from diffuser to collimator. Yes, sir. Generally, when we talk about the length of the tunnel, that is from the contraction section till the end. Till the diffuser. Yes, sir. But when we talk about the test section, that is only the length and the breadth and width. We don't talk about the length of that test section. Sir, कभी भी test section की बात करेंगे तो लोग बताएंगे 600 mm by 600 mm या 10 feet by 10 feet, उस तरह की बात करते हैं। तो what is that area in which we are going to area of cross section of uniform? जी सर, uniform section. उसकी लेंथ की बात हम लोग जनरली नहीं करते हैं। ठीक, हाँ, that is not important. Yes. And during in the periphery of the entire text section, the property, the air properties are same. No sir, near the wall it is going to be different. Near the wall, yes. Near the wall, of course. So we need to evaluate the boundary layer कि कितना boundary layer है उस जगह पे, और हमें जो मॉडल पुट करना होगा वो बाउंड्री लेयर के बाहर पुट करना होगा। yes. तो उसके लिए सर हम इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया उसका निकालते हैं। Effective cross section area. जी सर। As I said, and there is a very long, there is a very old battle, probably at the time of, I am just missing, sir, कौन थे वो जिन्होंने Bernoulli's time? Yes, even after the Bernoulli did not say, but there is a conflict that this aviation is because of in case of aircrafts, whether it is due to the lift is because of the Newton's third law of motion or because of the Bernoulli's equation of motion. The textbooks give it differently. Sir, as an aerospace engineer, how do you feel about it? Sir, I didn't get the question properly. The question is that several books of the physics people give the all credit of lift to the Bernoulli's principle, but the aerodynamic people give the whole credit to the Newton's third law of motion. Okay, sir, Newton's third law of motion is mostly for the propulsive system. Even for the lift they say. सर जब लिफ्ट की बात करते हैं तो जैसे हमारा जो प्रोपल्शन के चलते अगर हमारा मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर सर जो शेप है, शेप ऑफ द अपर सरफेस इज लार्जर। अगर सर आप देखिए तो ये हमारा इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो सर उसमें होता ये है कि वी कैन से कि अगर दोनों पार्टिकल को सेम टाइम में रीच करना है यहाँ पे तो इस पार्टिकल का स्पीड ज़्यादा होना होगा, तभी दोनों से ये तो Bernoulli equation वाला है। So I am basically in favor of Bernoulli. But many authors say that Bernoulli equation is not. Gagan ji, I think this discussion will be continued. Very exciting. So let me take the pleasure in inviting our colleague Dr. Priyanka to go for summing up and vote of thanks. Presenting vote of thanks. Priyanka, please. Thank you, sir. Thanks a lot. Sir, I would seek your apology in
having the capacity of summing up what he said, because he explained so many things, and I was also trying to make sense of, as sir has said in the starting, that I'm not a technical person, but I was trying to understand best to my capabilities. So I will not be able to sum up what sir said, but sir, with all my heart, I would really like to thank you on behalf of all of us, on behalf of Global Learners Meet by Vashni Teachers Group, that you came and you spared your time and you explained such a, I would say, from a distant, it seems that it's going to be very difficult subject to understand, but you really made it very, very simple so that, we could also make sense of what the topic is all about. So we are really, really thankful to you for this, sir. Next, Priyanka, please speak about the next program. Yes, sir. Sir, we'll be having our next, to all of you, we'll be having our next program on 10th of July. Sir, can I just share the poster? I am sharing. I am sharing. Yes, Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Coming. Just a minute. जब तक आप बता, actually this webinar, next webinar is from Rashmi Kulkarni, and she will be. Can you see it now? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. We can see that. Yes. Yes, now you can tell, Priyanka. Yes, thank you, sir. Thank you. So we would just like to share our poster for the next webinar. This is on 10th of July, and this is by Rashmi Kulkarni ma'am. She'll be talking about how human are we, our microbiome, nutrition, and long-term health. So we'll be having it on Saturday, 10th July, and we'll be starting our webinar from 8 p.m. onwards. So we just have one speaker. So I think approximately it may be like 1 to 1.5 hour session. And we'll be discussing the concept of microbiome, nutrition, and long-term health. Before you, may I make a very small comment? Yes, sir. Please. Yes, sir. वो ये है कि बहुत अच्छा इन्होंने बताया क्या क्या टेस्टिंग करते हैं और किस किस चीज. I mean, there are thousands of things for which you have to test, but ultimately all these things are tested on the basis of models. You do not, or you cannot in fact, test for real situations. That is why in spite of all these testing, you still have accidents. See, for example, an aeroplane is flying at a height of, let us say, 40,000 feet. It might encounter climatic conditions of temperature, conditions of pressure, which your model doesn't account for sometimes. So these are exceptional situations, and therefore these people try very hard to have a model as close as possible to the real situations. But again, as I say very frequently, model is a model. Model does not represent the true conditions or real conditions. So all this testing is very useful, but again, we have to leave to our fate sometimes when we travel, say, by air or whatever. Absolutely. But very good lecture. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Priyank. Thank you, sir.